जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन बोलिए यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Shri Ram Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Gauranitai Gauranitai Shri Shri Gauranitai 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 Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Shri Hari Rama Sankirtan ki Padita Pavan Hare Krishna Mahamantra ki Nitai Gaura Premanande Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Vayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sacha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitam Shri Vishakhanvitam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyata Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Nilachal Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Vanchakalvatarubhascha Kripa Sindhubhayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mungam Karoti Vajalam Pangam Langayate Garim Yatkripatamaham Vande Shekaram Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Meshwaram
हरे कृष्ण। आज की इस समय पे श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करने के लिए सबको स्वागत करते हैं। और विशेष करके जो भी भक्त इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, अजय प्रभु और भी कुछ माता जी उनसे नियुक्त हैं, उन सबको विशेष करके मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि हर सैटरडे को इस प्रकार ऐसा विपरीत स्थिति में जो हरे गुजर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, इसमें भी नियमित पूर्वक सबको रिमाइंड करना और उत्साह देना क्लास करने के लिए, और साथ साथ मेरे को भी उत्साह रखना क्लास देने के लिए, ये सब कोऑर्डिनेशन जो भक्त लोग कर रहे हैं तो हृदय पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि प्रचार में सबसे थैंकलेस जॉब जो होता है जो कोऑर्डिनेटर का, जो पूरा अपना खुद के लिए सोचते नहीं, भले दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, और उसमें कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। और इस प्रकार की जो इस प्रकार की हर एक विपरीत स्थिति में अलग अलग प्रकार के रेसिप्रोकेशन मिलने के बावजूद भी स्वयं उत्साह, स्वयं स्फूर्ति से वो ये सेवा करते आगे बढ़ते हैं ये भक्त। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, जो भक्त उनकी भगवान के गुणगान को प्रचार करने में लगे हैं, सबसे प्रिय भक्त वो होता है उनके। क्योंकि एक भक्त बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं 40 गैलन की खून लगता है, बिकॉज एक भक्त बनना बहुत आसानी नहीं है। भक्ति का प्रचार में बहुत लोग नियुक्त होता है, बट वो भक्त को सिंसियर बन के भगवत धाम पहुंचने तक और इंथुजियाज्म रखना, डिटर्मिनेशन रखना बहुत विशेष है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा पूरा इस्कॉन संस्था की जो इतना आयोजन जो मैंने किया है, स्थापना किया है, अलग अलग जगह पे मंदिर बना है, विग्रह की स्थापना किया है, प्रचार, अलग प्रकार की किताब प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ, अलग अलग उत्सव मना रहा हूँ। ये जब होगा जब कब एटलीस्ट एक भक्त भी, कि पूरा दुनिया में एक एटलीस्ट एक व्यक्ति प्रभुपाद के माध्यम से, प्रभुपाद जो आयोजन किया इतना बड़ा संस्था के माध्यम से, एक भी व्यक्ति वापस भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का क्वालिफिकेशन रह जाएगा होगा, उस समय उनकी पूरा इस्कॉन की सक्सेस माना गया है। क्योंकि प्रभुपाद नम्र भाव में कहते थे, वो जो व्यक्ति जब शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम पहुंचने के बाद वो एटलीस्ट कृष्ण से कहेंगे ये प्रभुपाद की कृपा की वजह में भगवत धाम पहुंचा। जब कृष्ण को पता चलता है कि प्रभुपाद की सेवा के वजह से ये भक्त शुद्ध भक्त बन गया है, फिर जरूर भगवान प्रभुपाद के ऊपर कृपा देंगे। ये प्रभुपाद की नम्र भावना है, उसी भावना को हमको स्वीकार करना जरूरी है। हम जितना भी आयोजन करते, प्रचार करते, उसमें ये आशा रखना है कि एटलीस्ट एक व्यक्ति को मैं भगवत धाम पहुंचाऊं, एटलीस्ट एक। शायद हो सकता है बहुत लोग भी जा सकता है। श्रील प्रभुपाद को एक बार प्रेस रिपोर्टर्स से पूछे, तो प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछे कि आपकी सोसाइटी में कितना शुद्ध भक्त है? तो प्रभुपाद ने बगल में खड़ा हुआ अपना शिष्यों को पूछते, लीडर्स को,
प्रभुपाद पूछते हैं कि हमारा सोसाइटी में कितना भक्त है। लगभग 1973 की बात है। उस समय विशेष करके पूरा दुनिया में लगभग 300 या फिर 400 भक्त जुड़े थे। तो उन्होंने बताया था कि इतना भक्त जुड़े हैं प्रभुपाद जी, 300। फिर प्रभुपाद ने रिपोर्टर को कहता है कि मेरा सोसाइटी में 300 शुद्ध भक्त है। इसका मतलब कि हर एक जो भी स्क्रीन के पीछे बैठ के सुन रहे हैं या फिर स्क्रीन के पीछे नहीं बैठा है बल्कि आपको बैठ के सुनाने के लिए तैयार करके रखा है घर वाला और घरवाली जो भी है, या फिर घर के जो परिवार लोग जो भी मदद कर रहे हैं, ये सब एक समय तो या फिर कभी ना कभी भगवान के धाम पहुंचने का पद पे आ गया है। सिर्फ समय उनको डिफरेंट कर रहे हैं। जितना एक भक्त सिंसियर रहेंगे उतना जल्दी वो पहुंच जाएंगे, जितना ढीला डाला रहेंगे उतना ढीला डाला वो पहुंचेगा, बट पहुंचना जरूरी है। और भगवान ये भी कहता है कि जो इच्छा भी नहीं रखते हैं उनको भी घसीट के लेके जाएगा भगवत। तो हमारे ऊपर है, वो हमको प्रेम से जाने की इच्छा है या फिर फोर्सफुली भगवत धाम पहुंच जाने की इच्छा है। तो ये जो हमारा एक्चुअल स्वार्थ है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा सबका एक स्वार्थ होता है जिसे हम जीवन में बहुत प्रकार के कार्य करने के लिए हम सोचता भी नहीं है। पर ये समझना है कि हमारा एक्चुअल स्वार्थ है वो स्वयं विष्णु है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इस दुनिया में जो भी चीज हो रहा है इसके पीछे कारण ढूंढते रहेंगे और सीधा अल्टीमेट कारण को जो पहुंचेगा वो भगवान है। तो हमारे जीने का भी जो कारण है वो भगवान है। श्वास लेने का भी कारण है भगवान, परिवार बसाने का भी कारण है भगवान। तब ये समझ में आता है व्यक्ति को, वो भगवान की प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहते। उस समय वो समझेगा कि मेरा आत्मा की जो स्वार्थ है वो है स्वयं विष्णु। तो हर एक का स्वार्थ है विष्णु। इसको पाने के लिए व्यक्ति क्या करते, इस दुनिया का हर चीज को छोड़ने का भी तैयार हो जाए। तो ये यहाँ पे हम जो भगवत गीता की जो चर्चा कर रहे हैं, ये पहले बार कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहे थे। जब अर्जुन ने ये सुन रहे हैं, पूरा उस युद्ध भूमि में सैकड़ों लोग खड़ा है और युद्ध के लिए सब के खड़ा, उसके बीच में डिस्कशन चालू हुआ। तो नेचुरली जब डिस्कशन चल रहे हैं अर्जुन और कृष्ण के बीच में, अर्जुन का माइंड तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं, इतना बगल में बैठा है, बगल में खड़ा है, सामने अपना परिवार लोग खड़ा है जिससे हम युद्ध करना था। तो हम देखते हैं कि इतना माहौल होने के बावजूद भी अर्जुन डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। वो ध्यान से सुन रहे हैं कृष्ण को, और जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको अपने एक नम्र भाव में सबऑर्डिनेट रोल पे वो पूछ रहे कृष्ण। बल्कि हम अपना अपना रूम में बैठे हैं एसी लगा के, या फिर कोई भी स्थिति में, कोई भी सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, उस समय जितना हम ध्यान से सुन रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 घंटा की या फिर 1.5 घंटा की जो क्लास जो चलते हैं हर हफ्ता, इसको एक नॉर्मल प्रोग्राम जैसे मत लीजिए। ठीक है, अजय प्रभु कह रहे हैं इसलिए हम लोग क्लास कर रहे हैं, या फिर प्रभु जी कह रहे हैं तो भगवत गीता का सुनना है। इसको इस प्रकार सुनना है कि
यह जो अपॉर्चुनिटी है भक्त का संग में भागवत गीता की श्रवण करना, इससे जरूर ना जरूर मेरा हृदय में कोई ना कोने पे कभी तो कभी, अभी आज नहीं तो कभी तो कभी गोविंद के प्रति प्रेम तो जागृत होगा। क्योंकि भागवत श्रवण भक्तों के संग में जब हम करते हैं, उस श्रवण पता नहीं कितना दिमाग को आपको समझ में आता है, और जरूर वो श्रवण, वो शब्द जो भगवद गीता के जो श्लोका है इसके बारे में, जो भगवत भक्तों की कथा, ये सब जरूर दिमाग को कितना इफेक्ट करेगा पता नहीं, फिर हृदय में जाके हृदय को अलग अलग प्रकार के अनर्थ धीरे धीरे साफ करते रहेगा। करते हुए क्या होगा, जरूर एक कोने में इच्छा जागृत होगा। वो इच्छा है भगवान की पाने की इच्छा। जब एक बार वो इच्छा पाने का आ गया है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। उस समय क्लास, प्रभु जी आप एक हफ्ते में एक घंटा क्लास क्या, हर दिन आप क्लास लीजिए, हर दिन हम 1 घंटा का सुनेंगे। प्रभु जी 4 माला क्यों, मैं अभी 8 माला करूंगा। तो वो 8 माला क्यों, मैं 16 माला करूंगा। इस प्रकार एक इच्छा जब हृदय में जागृत होता है भगवत भक्ति करने से, उस इच्छा आने के बाद उसको निकालना मुश्किल है। क्योंकि भगवत भक्ति करने का इच्छा प्रकट हुआ मतलब एक्चुअली आप भक्ति के पद पे आ गए। तो आज की हम चर्चा करने वाला था 13 वर्ष से, इसके विशेष करके आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, तो 8 से 12 नंबर 13 अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना, इस पर्टिकुलर अध्याय में हमने देखते हैं कि अर्जुन ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। क्षेत्र कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, और पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, और ज्ञानम क्या है, और ज्ञेयम क्या हो सकता है। ये 6 प्रश्न के उत्तर में कृष्ण आरंभ करते हैं, जिसमें एक क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि क्षेत्र, ये जो शरीर है एक क्षेत्र है, और इस शरीर में आत्मा है, मतलब हम, आप सब इस पर्टिकुलर शरीर में एक क्षेत्र ज्ञानी है। क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानकारी है ना। हम सबको हमारा शरीर के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। हमारा मन का भावना क्या है, मन का इच्छा क्या है, हृदय में किस प्रकार के आनंद बैठा है, क्या हमारा अंदर में होता है, वो सब हमको ही जानते हैं। तो हम है क्षेत्रज्ञ, और उसके बगल में, उस आत्मा के बगल में और एक क्षेत्रज्ञ बैठा है जो सब क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। ये पूरा दुनिया ब्रह्मांड में जो भी क्षेत्र है सबके बारे में जानते हैं, वो है परमात्मा। तो वो भी कहते हैं कृष्ण परमात्मा है, सबसे क्षेत्रज्ञ वही सही। और तीसरा जो कहते हैं जो पुरुष वो है स्वयं, ये जो परमात्मा यही पुरुष है। और अभी की जो 8 नंबर और 12 नंबर श्लोका तक उन्होंने ज्ञानम के बारे में कहते हैं। क्योंकि अर्जुन का तीसरा प्रश्न था ज्ञान क्या है, 5th क्वेश्चन, ज्ञानम क्या है, किसको आप ज्ञान कहते हैं। आधुनिक दुनिया में हर प्रकार के ज्ञान का हम लोग डिग्री पाने का चाहते हैं। कोई साइंस लेते हैं, कोई कॉमर्स लेते हैं, कोई मेडिकल लेते हैं, कोई आर्ट लेते हैं, कोई लॉ लेते हैं, कोई बिजनेस को लेते हैं। इस प्रकार अलग प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया की। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ज्ञान उसको कहते हैं जिस माध्यम से उस इंद्रिय है, उस ज्ञान ऐसा एक टूल है जिस माध्यम से ये आत्मा एक क्षेत्र के बाहर आने के लिए सक्षम।
मतलब उनके पास पूरा एबिलिटी आ जाएगा आत्मा के पास, जो एक क्षेत्र भव सागर के जो बंधन से मुक्त हो सकता है, उसी चीज को ज्ञान कहते हैं, और किसी को भी ज्ञान नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो भी ज्ञान आप पाएंगे उस दुनिया में, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे रोटी को कमाना है, इसके बारे में जो ज्ञान है भगवत गीता के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, वो ज्ञान नहीं। कृष्ण के अनुसार ज्ञान वो है भौतिक दुनिया से आपको मुक्ति देने वाला है। इसमें उन्होंने लगभग 20 नंबर, टोटल 20 आइटम की ज्ञान के बारे में कहते हैं। तो आज की जो चर्चा है हम लोग वहां से करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भगवत गीता की जो 8 नंबर से 12 नंबर श्लोका तक उसकी रिसाइटेशन करेंगे हम पहले। उसके बाद इस अनुवाद की जो अनुवाद है, फिर भी हम एक बार करेंगे अनुवाद, और इसके तात्पर्य में हम जाएंगे। उसमें हम जो बाद ने सुंदर रूप में जो चर्चा किया उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो अभी भगवद गीता के 8 नंबर श्लोक का अजय प्रभु से उस स्क्रीन स्लाइड में जो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अब प्रभु जी, जैसे आत्मा का ज्ञान भी तो वास्तविक ज्ञान बोल सकते हैं ना, आत्मा का भी बोल सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं। हाँ जी, ज्ञान का अभी इसमें आएगा, उसमें एक है ये आत्मा की ज्ञान। तो आत्मा की ज्ञान है, बट यहाँ पे कृष्ण ने ज्ञान का एक परिभाषा देते हैं, बहुत सुंदर रूप में देते हैं। ज्ञान सिर्फ एक नॉलेज ने जो दिमाग में लेने वाला ज्ञान वो होता है जो आपके हृदय को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान वो होता है आपके कार्यों में भी दिख सकते हैं। ज्ञान जो होता है जो आत्मा के स्तर पे आपको संतृप्ति देते हैं। सो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पे जो भी ज्ञान है उसको यहाँ पे कहते हैं कृष्ण। ये 20 आइटम में 8 नंबर से 12 नंबर श्लोक तक यही इसी का डिस्कशन है। तो हम यहाँ पे ये रिसाइटेशन, ठीक है माता जी। हरि बोल प्रभु जी। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनविष्विघ्नः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत् इष्टानिष्टोपपत्तिषु महीचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतन्नम् इति
प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो हरे कृष्ण। तो इसकी जो अनुवाद पढ़िए, फिर तात्पर्य में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाँ, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, सनातन, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि क्षेत्र का जो ज्ञान का अर्थ है ना, जो इस भौतिक दुनिया में ज्ञान का अर्थ को जो जिस तरफ हम सुनते हैं और सुन के पढ़े, यहाँ कृष्ण ने अलग ही एक उदाहरण दे रहे हैं ज्ञान का। हाँ? सिर्फ ये नहीं है कि ये जो शरीर के बारे में जानना या फिर शरीर के संबंधित कार्य, मतलब दुनिया से इंटरेक्शन जो भी होता है उसके बारे में ज्ञान रखना, इसके बारे में बिल्कुल नहीं कहते हैं कृष्ण। कृष्ण तो अलग ही एक रूप शब्द उसकी जो अर्थ बताते हैं ज्ञान के बारे में। इस भौतिक दुनिया से हमको मुक्ति दे सकते हैं, उस चीज को कृष्ण ने ज्ञान के नाम दिया है। और इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए ये 20 प्रकार की जो चीज को अपनाना है। इसमें कुछ गुण है, उसमें कुछ कार्य है, उसमें कुछ अनुभूति है जिसको हमको स्वीकार करना है। सो 20 प्रकार की इस चीज को जब हम अपनाएंगे तो हम समर्थ होंगे इस भौतिक दुनिया से मुक्ति पाने का। तो यहाँ पे एक एक करके हम जाएंगे, इसके ऊपर एक उदाहरण भी हम चर्चा करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो तात्पर्य में दूसरा पैराग्राफ से, पहले पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उसके दूसरा पैराग्राफ से हम लोग पढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हिंदी में पढ़िए फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, आमनित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा। माइक ऑन है लग रहा है, उसके अलावा साउंड आ रहा माता जी के आपके यहाँ पे सब में प्रभु चले तो अजय प्रभु। हाँ तो मैं पढ़ता हूँ। कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहे हैं। हाँ हाँ कुंजन माता जी आपके यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो अगर कोई घर में आए हुए तो मैं पढ़। हाँ मैं पढ़ती हूँ अभी। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, आमनित्व का अर्थ है कि मनुष्यों को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की तुष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है,
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। हरे हरे कृष्ण। तो पहले नम्रता ना, तो अब विशेष करके एक बार प्रभुपाद जी बहुत बड़ा का प्रचार करने जाते हैं, तो प्रचार में कभी पीछे नहीं हटते थे। कोई भी टॉपिक हो वो शास्त्र के माध्यम से, दृष्टिकोण से वो अपना बात को बताते थे। सो बहुत बार बहुत लोग जो स्कॉलर्स है, अमेरिकन है, यूरोपियंस है, उनको बहुत दिल में बहुत स्ट्रांगली लगते थे, इतना घमंड क्यों है वैसा। बट बाद में धीरे धीरे प्रभुपाद की जो बात सुन के उनकी उम्र को भी रेस्पेक्ट करते हुए है, लोग समझ जाएंगे कि ये जो स्वामी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, सडनली एक व्यक्ति, शायद वो LSD लिया है, कुछ तो ड्रग्स लेके सडनली बीच में खड़ा हो जाता है। खड़ा होके फिर गाली देने लगता है प्रभुपाद जी। मतलब इस देते हैं लोग सुनने के लिए, पर नॉर्मल एक अमेरिकन भी उस बात को सुनने से एजिटेट हो जाता है। तो वहां पे प्रभुपाद जी बैठे थे, क्लास दे रहे थे, और इतना लोग डिसाइपल्स है, सन्यासी से उनकी प्रभुपाद की, सबके बीच में व्यक्ति खड़ा होके इस प्रकार प्रभुपाद को इतना नीच करके बात कर रहे थे। फिर कुछ वक्त इतना डिस्टर्ब हो गया, उठ गया है उनको मारने के लिए। प्रभुपाद उनको रोका है। फिर प्रभुपाद सुना सुनने के बाद वो आदमी ने इतना बोल दिया है, बोलने के बाद आदमी वहां से निकल के चला गया। चलने के बाद श्रील प्रभुपाद को शिष्य ने कहते, प्रभुपाद व्हाई डिड यू नॉट स्पीक एनीथिंग, आपने क्यों नहीं कुछ कहा है उनको, आप कुछ बोल सकते थे उनको, या फिर हमको तो बोल सकते थे, हम लोग को परमिशन दे सकते, हम जाके उनको निकाल ही सकते। इस प्रकार की उन्होंने बात बताया, तो आदमी ने कि हम लोग डिस्टर्ब हो गया। तो प्रभुपाद ने अपना सिर को नीचे रख के कहते हैं, शायद मैंने कुछ गलती किया है जिसका कर्म मैं उस प्रकार भुगत रहा हूं। शायद इस व्यक्ति को मैंने कभी न जीवन में कुछ ना कुछ चोट पहुंचा है, इसलिए भगवान ने इस प्रकार की सिचुएशन को अरेंज किया जिसमें मैं कुछ। तो ये है नम्रता। और एक बार प्रभुपाद जब क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद वाले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो ब्राह्मण होता है फर्स्ट क्लास, सबसे सब आश्रम के हिसाब से टॉप में रहते हैं, और उनके नीचे क्षत्रिय है। एक क्षत्रिय पूरा राज्य को परिपालन करना चाहिए, और उस परिपालन करने के लिए जो भी पैसा लगेगा, धन जो भी लगेगा, चेंज करके देखते हैं टैक्स के रूप में। तो वैश्य उनके नीचे करते हैं, और शूद्र है जो फोर्थ क्लास है, जो फोर्थ क्लास सोसाइटी में है, जो सबको ये तीनों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मदद देते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद ने इंटेलेक्चुअल क्लास, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, फिर बिजनेस क्लास, फिर लेबर क्लास, इस प्रकार 4 प्रकार की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जनरली अब देखेंगे भारत ब्रिटिशर्स आने के पहले ये पूरा क्लास सिस्टम तो एक नियमित रूप से अच्छा चल रहे थे। जब ब्राह्मण का दिमाग सट गया है, तो उस समय हर प्रकार के वर्णाश्रम को लोग मानना भूल गया, मानने के लिए इच्छा नहीं, तो उसको खंडन करने लगा। उसमें ब्रिटिशर्स भी मदद किया है। तो अब देखेंगे पूरा दुनिया में इंडिया के प्रति एक दुर्विचार है वर्णाश्रम को लेके। और प्रभुपाद यहाँ उसी सिचुएशन में प्रभुपाद बैठे अमेरिका में, और वहां पे ये वर्णाश्रम के बारे में कह रहे हैं, कैसे फर्स्ट क्लास रहेगा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। सो ये सब सुन के एक व्यक्ति, जो एक बड़ा आदमी था, जो स्कॉलर था, वो बैठा है क्लास में, टेम्पल हॉल में प्रभुपाद क्लास दे रहे थे। सडनली वो डिस्टर्ब हो गया, जरा डिस्टर्ब हो गया बात सुन के।
ठीक है, इतना क्लासेस क्यों कर रहे हैं? हम तो क्लासलेस बनाना चाहते हैं सोसाइटी को, बट यह तो इतना क्लास डिविजन करके बैठा है। एक स्वामी जी इस प्रकार स्ट्रांगली बोल रहे हैं, फिर वो खड़ा हो गया, खड़ा होके पूछते स्वामी जी को, स्वामी जी आप कौन सा क्लास का है? तो अभी ये प्रश्न जैसे बोलते हैं, पूरा हॉल में सब साइलेंस हो जाता, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी कुछ नहीं कहते। फिर प्रभुपाद को ज्यादा समय नहीं लगा। एक विचार आ सकता है, प्रभुपाद कहेंगे तो मैं ब्राह्मण क्लास में फर्स्ट क्लास, तो ये सही है एक्चुअली, प्रभुपाद तो ब्राह्मण क्लास फर्स्ट क्लास, तो उस लेवल पे तो बोल सकते हैं। जैसे उनको थोड़ा छोटा चोट पहुंच सकता है, या फिर प्रभुपाद खुद को क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में रखेंगे? वो तो सन्यासी है, एक गुरु है, वो क्यों सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल पे अपना को रखेंगे? वो तो ज्ञान देने आया है, क्या उनको खुद को मानेंगे वो लेबर क्लास है? इस प्रकार के अलग अलग विचार चल रहे, प्रभुपाद क्या कहेंगे? तो सडनली प्रभुपाद ने अपना साइलेंस को ब्रेक करते और अपना सिर को नीचे करके उस आदमी को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, आई एम 5th क्लास, आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल द क्लासेस। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने एक वैष्णव की एक विचार को, वैष्णव किस प्रकार इस दुनिया में प्रचार करने समय सेवा करने किस प्रकार की भावना रखना है, इसके बारे में प्रभुपाद सुंदर इस कथा की, इस लीला के माध्यम से बताए। यही नम्रता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक पर्टिकुलर लीला आते है जिसमें प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, ना हम दृपो न च नरपति ऋणापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णीच न ग्रहपति ऋण वनस्तो यतिर्म। मैं कोई भी वर्ण या आश्रम से मैं जुड़ा नहीं। फिर आप कौन है? आप ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना संन्यास है, तो आप क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं जो गोपी है, जो कृष्ण की सेवा में नियुक्त है, इस गोपियों की दास जो होते मंजरी से सखी, सखियों की दास मंजरी और उनकी दासों की दास। सो ये दास की भावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नम्रता का मतलब ये दास की भावना को स्वीकार करना। ज्ञान में सबसे पहले स्टेप जब कदम जो लेना है हमारे जीवन में, वो है नम्रता। इसके उदाहरण में षड गोस्वामी है ना, 6 गोस्वामी जो हमारा आचार्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को इस पूरा दुनिया में प्रकट किया है। आचार्य में 6 गोस्वामी, वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपालक, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। उसमें पहले 2 गोस्वामी जो दोनों भाई हैं, ये लोग कर्नाटक की सारस्वतिक ब्राह्मण फैमिली से, परंतु उस समय नवाब हुसैन खान की जो रूलिंग में इस पूरा परिवार में, कर्नाटक के परिवार में, पूरा कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आया था कि ये जो सनातन और रूप और सनातन इतना परिवार के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, एक सारस्वतिक ब्राह्मण फैमिली से, और दिमाग में, बुद्धि में भी बहुत तीक्ष्ण है। और नवाब चाहते थे कि दोनों उनकी जो किंगडम में, राज्य दरबार में एक प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप लेने के लिए, रोल्स लेने के लिए, पर ब्राह्मण परिवार के होने के नाते उनको एक ये जो
कसाई, जो गाय को खाने वाला, इनकी इस प्रकार के राजा की अंदर में सेवा करने के लिए इच्छा नहीं था। फिर राजा ने धमकी दिया, जब तक आप मेरे अंडर में जॉब नहीं करेंगे, ये पूरा कम्युनिटी को, कर्नाटक में जो भी ब्राह्मण कम्युनिटी सबको हम खत्म करेंगे, नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। सो उनको बचाने के लिए दोनों ने उनके अंडर में सेवा करने चले जाते। उसके बाद क्या होता है, जो ब्राह्मण की जो उधर के जो कुल के लोग हैं, वो सब पूरा परिवार को तिरस्कार करते हैं ब्राह्मण कुल से। तो उस समय से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को जनरली ब्राह्मण के परिवार में कोई उनको स्वीकार नहीं किया वापस। ये तो मुगल्स को, मुस्लिम्स को उन्होंने सेवा किया है, ये दोनों जॉब किया है, इसको उन लोग को हमारा परिवार, हमारा जो कुल से निकाल दे रहे हैं, इस प्रकार निकाल दिया उनको, कभी स्वीकार नहीं किया। और ये दो गोस्वामी जब श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने गया है, वहां पे उस समय सनातन गोस्वामी ने सिद्ध बकुल में रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ। हरिदास ठाकुर के साथ रहने के बावजूद भी, बल्कि वो अपना जन्म है परिवार कौन सा, सनातन ब्राह्मण, सारस्वती ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए जाने का, क्योंकि वो अपना नम्र भाव में रहा। कभी भी उस मेन रोड, जो ग्रैंड रोड कहते हैं जगन्नाथपुरी के, जो मेन रोड जहाँ पे जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, ग्रैंड रोड कहते हैं, उस रोड पे कभी उन्होंने मंदिर के पास से नहीं गया है। कारण श्री चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते, सनातन गोस्वामी आप क्यों उस मेन रोड से क्यों नहीं आते? गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, उनको मिलने के लिए सीधा रोड में आने से जल्दी होगा। और वो क्या करते सनातन गोस्वामी, समुद्र की तट लेके आते थे, और इतना धूप में समुद्र की जो रन के बीच में इतना गर्म होगा, तो नीचे नेचुरली उनके पैर जल जाते, फिर भी वही पथ से वो आते थे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि आप क्यों इस प्रकार कर रहे हैं? फिर बोलते हैं कि नहीं, मैं तो एक्चुअली एक म्लेच्छ को सेवा किया, गाय को खाने वालों को मैंने बहुत साल तक सेवा किया है, इसलिए मैं अपराधी हूँ। और इस प्रकार के अपराधी जो जगन्नाथ की सेवक पांडा लोग जो है भगवान के, और दैत्यपति जब भगवान की सेवा करने जाते हैं जगह मंदिर के अंदर, श्री मंदिर के अंदर, उनके सामने में आऊंगा वो अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए उनकी सेवा में बाधा नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये समुद्र के पद लेके आपके दरबार में आ रहा हूँ। ये है सनातन गोस्वामी, नम्रता के सबसे श्रेष्ठ रूप में। बल्कि आचार्य ने पूरा वैष्णव सिद्धांत को सुंदर रूप में, अलग अलग शास्त्र के रूप में दिया है, फिर भी हृदय के लेवल पे अपना नम्रता को मेंटेन किया है। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट पैराज पढ़िए मत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पे दो गुण के बारे में चर्चा किया है, वो अमानित्वम अदम्बित्वम। अमान मतलब नम्रता, अदम्बित्व मतलब प्राइडलेस। जैसे किसी के पास कुछ है फिर भी वो कहते हैं मैं नम्र हूँ, ये इसको अमानित्व कहते हैं। अदम्बित्व मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं मेरे पास नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, इसको अदम्बित्व कहते हैं। दम्भ मतलब मान लीजिए मेरे पास है ही नहीं, फिर भी मैं सब दुनिया को बोल रहा हूँ मेरे पास है, पोस्ट है, पोजीशन, उसको दम्भ कहते हैं। अदम्बित्व मतलब वो नहीं रहना। मेरे पास मान लीजिए मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो मेरे को बोलना है नेचुरली मेरे पास अकाउंट नहीं है,
तो आप बोलेंगे मेरा सैलरी इतना मिलता है, तो उतना ही बोलना है, मेरा इतना मिलता है मेरे से। बी ऑनेस्ट, अदम। ये दोनों के रूप में हम लोग ये चर्चा किया सनातन गोस्वामी का। फिर नेक्स्ट अहिंसा आता है, चलिए पढ़िए। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह अहिंसा करता रहता होता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। तो जैसे अहिंसा का बात आते तुरंत हम सबको हमारा जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी की याद आती है। श्रील प्रभुपाद के समय उन्होंने गांधीयन थे, उन्होंने नेशनलिज्म के लिए जो गांधी ने रिकमेंड किया है बॉयकॉट एनीथिंग ब्रिटिश, उसको पालन किया श्रील प्रभुपाद अपना जीवन में। श्रील प्रभुपाद ने उस बॉयकॉट के चक्कर में उन्होंने अपना डिग्री भी नहीं लिया है, जो स्कॉटिश कॉलेज से ब्रिटिशर से दे रहे थे उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मानते हैं गांधीयन के रूप में स्वराज के लिए ये बॉयकॉट करना जरूरी है। बट वही श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती की उनकी गुरु के आश्रम में आते हैं, उस समय समझते हैं रियल स्वातंत्र क्या है। इस भारत हो दुनिया हो, उसके स्वतंत्रता जब होगा जब हर एक मनुष्य भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने एक त्रुटि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गांधीयन के मूवमेंट में एक है कि बल्कि वो भगवत गीता के आश्रय लेके पूरा प्रचार कर ले नॉन वायलेंस का। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली गांधी ने एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो है कृष्ण के ऊपर और भक्ति के ऊपर। उन्होंने अलग अलग लेटर महात्मा गांधी को लिखे, उन्होंने उनको बताने लगा, रिक्वेस्ट किया बहुत बार लेटर में कि आप जरूर हर दिन आप गीता के अध्ययन करते हैं, बट उस अध्ययन में आप भगवान के बारे में नहीं चर्चा करते हैं, बल्कि आप राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के बारे में चर्चा बहुत करते हैं। मेरा आशा है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इंडिया को स्वतंत्र मिल गया है, आप देखेंगे अभी की जिस सिचुएशन में आपको पॉलिटिकल पोजीशन में कोई आपको पता नहीं देते, आपको बगल में रख दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अभी एक गीता के प्रति सही ढंग से भगवान का भक्ति कैसे करें उसके ऊपर प्रचार करिए। आपकी बात पूरा दुनिया सुनेगा, पूरा भारतवासियों ने सुनेंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने गांधी के प्रति प्रेम और आदर की वजह से उन्होंने इस प्रकार की सही अहिंसा का मतलब वो समझा रहे थे। हमको भी भक्त होने के वजह हमको भी ये समझना जरूरी है अहिंसा का। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको गांधी की जो सेवा जिस भारत देश के लिए किया है उसको भूलना है, उसको नहीं भूलना है, बल्कि हमको ये भी समझना जरूरी है रियल अहिंसा वो होता है जब दूसरों को भक्ति की ज्ञान आप नहीं देंगे। तो इसके उदाहरण में शास्त्र के अनुसार आता है श्रील नारद मुनि। आप जानते हैं नारद मुनि कभी भी मौका मिलता है अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार में उन्होंने प्रचार करके उनको भक्त बनाया। उसमें एक शिकारी था, उनका नाम है मृगारी, मृग आरी, मतलब जो मृगों के शत्रु है। जो मृग होता है उनका कुछ ये नहीं रहता, कंठ नहीं रहते बोलने का। बाइबल के अनुसार और हमारे शास्त्र के अनुसार उस कंठ जिसका नहीं है, जो प्राणी को हमको संरक्षण करना है, उनको मारना नहीं। तो मृगारी क्या करते थे, उनके पिताजी ने उतना ही ज्ञान दिया है जितना उनको जानते थे। वो
जानवर को, मृग को आधा मारते थे। मान लीजिए उनका एक पैर तोड़ दिया है या फिर उनकी आंखों को निकाल दिया है, इस प्रकार आधा मार के छोड़ देते थे। और वो प्राणी उस वेदना से कुछ दिन चलते चलते मर जाते थे। उस वेदना को देख के मृगारी को आनंद मिलते थे। उनका हर दिन ये ड्यूटी था, कोई भी प्राणी को देखते थे उसको आधा मार के छोड़ देते और हर दिन देखते थे कि कितना वो मर रहे, कितना उनकी वेदना हो रहा है। ये पूरा लेकिन साइको, यू कैन अंडरस्टैंड, मृगारी लाइक ए साइकोपाथ। तो जब नारद मुनि उनको देखा, उनके प्रति ईर्ष्या नहीं हुआ, नहीं, उनके प्रति द्वेष नहीं हुआ है नारद मुनि का, बल्कि उनके प्रति एक दया भावना प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने क्या करते हैं नारद मुनि, जाके मृगारी को पूरा एक व्हाट यू कॉल ए 70 mm स्क्रीन या फिर 35 mm स्क्रीन पे, वर्चुअल स्क्रीन में पूरा दिखाते हैं उनकी फ्यूचर। मृगारी को पूरा बताते, तुम जिस प्रकार कार्य कर रहे हो उसका क्या भुगतना पड़ेगा आपको। वो पूरा मूवी देखने के बाद, उनके फ्यूचर की मूवी वो देख के फिर समझ में आ जाते हैं मृगारी को क्या बड़ा गलती कर रहे हैं। फिर वो शरणागति लेते हैं और नारद मुनि के आदेश के अनुसार वो भक्ति को स्वीकार करते हैं। और वो बोलते कि भक्ति करने से मेरा खाना पीना कैसे होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान के प्रति विश्वास करो। तो अपना परिवार के साथ मिलके मृगारी नारद मुनि के आदेश के अनुसार भक्ति को अपनाया है। धीरे धीरे उस वन की जो बगल में जो भी प्रजा लोग रह रहे थे, गांव के लोग, वो लोग इस प्रकार की परिवर्तन को देख के मृगारी की तुरंत उनको आदर देने लगा। फिर उनको जो भी जरूरी है इस प्रकार की एक संयोगता करने लगे। तो उसके बाद मृगारी एक शुद्ध भक्त बनते हैं। फिर नारद मुनि एक बार, ये तो प्रचार एक इवेंट में हुआ है, वन टाइम प्रोग्राम, या फिर आप लोग जैसे एक भक्त ऋषि की प्रोग्राम करते हैं, उसमें पहले क्लास में आया और पहले क्लास सुन के ही वो भक्त बन गया, अपना जो भी दुर्गुण है सब छोड़ दिया है। फिर कुछ महीने के बाद वो आपको घर पे बुलाते हैं, प्रभु जी, आप माता जी आप मेरे घर पे आइए, थोड़ा मेरे घर पे आके प्रोग्राम करिए, या फिर फंक्शन हो रहा है, आपकी इन्विटेशन। सो नारद मुनि को इन्विटेशन देने के लिए तो उस समय ईमेल और फोन नहीं थे मृगारी के पास। तो नारद मुनि कुछ समझ के वो कुछ साल के बाद मृगारी के घर जाते हैं। जब मृगारी के घर पहुंचने के समय देखते हैं कि मृगारी क्या कर रहे हैं, वो सूरा अपना पूरा वेशभूष सब बदल गया है मृगारी का। पहले तो देखने में डर लगते थे मृगारी, अभी इतना वैष्णव रूप में पूरा तिलक लगा के, कंठी माला पहन के, धोती उत्तरी पहन के भगवान के नाम ले रहे थे और उस गांव में अलग अलग की सेवा में नियुक्त थे वो। फिर जैसे देखा नारद मुनि आ रहे, उनके गुरुजी जिसकी संग के प्रभाव में उतना परिवर्तन हो उनके खुद के जीवन में, वो जाते प्रणाम करने। जब प्रणाम करने जा रहे हैं, वो तुरंत देखा कि जब जिस रास्ते पे जा रहे थे, छोटे छोटे चींटी रास्ते को क्रॉस करके, अपना चींटी का कहने फ्लो होता है, आप घर पे भी देखेंगे या फिर कोई भी रास्ते पे चींटी जाएगा कुछ खाने के लिए या फिर एक लाइन को फॉलो, सिस्टमेटिक लाइन क्यों बना के। उन्होंने देखे कि चींटी जा रहे हैं एक जगह से दूसरा जगह, उस रास्ता से क्रॉस करके जा रहे हैं। उनको लगा कि उनके ऊपर चलेंगे तो मर जाएगी सब चींटी। उन्हें क्या करते हैं, अपना ऊपर अंगवस्त्र को निकालते हैं, उस उत्तरी के माध्यम से उस चींटी को बगल में हटा के वो प्रणाम करते हैं नारद मुनि को। फिर ये परिवर्तन को देखे नारद मुनि की जो फ्रेंड है पर्वत मुनि, उनके साथ जो आया है, वो देखते कि मृगारी इस प्रकार के परिवर्तन की हिंसा का एक बड़ा डिग्री लेके बैठे थे उन्होंने एक समय। अभी भक्तों के संग में वो अहिंसा के सबसे बड़ा डिग्री लेके बैठा है। एक चींटी के प्रति भी वो ध्यान दे रहे हैं। सो भक्ति का प्रचार करेंगे ना,
नेचुरली सब लोग अहिंसा का पालन करेंगे। जो भक्त होता है वही अहिंसा का पालन कर सकता है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति हैं, एक माता जी, जो उन्होंने बहुत प्रयास किया कुत्तों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए। शी वॉज ए सोशल सर्विस। उन्होंने एक आदमी के ऊपर केस कर दिया। इन्होंने अपना घर का कुत्ता को लगभग एक छोटा रस्सी से बांध के रखा है घर पे। उन्होंने केस किया कि ये कुत्ते को राइट ही नहीं है अपना घर पे मुंह करने के लिए, इतना छोटा रस्सी के साथ उसको बांध के रखा। वो कैसे सोएगा, कैसे खाएगा। कोर्ट तक गया केस, फिर वो आदमी को अरेस्ट किया। फिर रिपोर्टर्स ने इतना प्रेम ये स्त्री वो कुत्ता के ऊपर दिखा है, उसको लेके रिपोर्ट इंटरव्यू करने आया उनके पास। फिर पूछा आप इतना कैसे कर पा रहे हैं, ये कुत्ता के प्रति इतना प्रेम आप दिखा रहे हैं, आप सबसे महान हैं। फिर उनको इंटरव्यू में सब अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उसमें उस स्त्री से पूछते हैं कि आपका सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है। होता है ना इंटरव्यू में बहुत प्रश्न पूछते हैं अलग अलग, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आपका क्या हॉबी है, क्या ईटिंग का क्या अच्छा लगता है। सो वो कहने लगा मेरे सबसे फेवरेट डिश है बील, मतलब एक गाय की बछड़ा को, एक गाय की बछड़ा को, मासूम बछड़ा को निकाल के उसको एक घर के अंदर रख के उसको अलग अलग प्रकार की खाना देते। खाना दे के वो भूख लगता है बछड़ा को, वो खा लेते। खाने के बाद उनकी जो अंदर की मांस है पूरा मांस बन जाते, मोटा बन जाएगा। मोटा बनने के बाद उसको सड़ा के मार के सड़ाते। उसको मार के सड़ाने के बाद उस चमड़ा को निकाल के, उस मांस को निकाल के उसको पका के बना के बेचते हैं, उसको विल कहते हैं। तो ये रिपोर्टर लोग को समझा नहीं है ये क्या कुत्ता के प्रति प्रेम तो दिखा रही है, बट एक मासूम गाय की बछड़ा को मार के अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बना के खा रही। ये किस प्रकार की अहिंसा है। तो अहिंसा नहीं हो सकता है जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। हम कभी नहीं देख सकते कि जो भी प्राणी है हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे बगल अगल और फिर वन में, वो भी भगवान की अंश है। अहम बीज प्रदप पिता, भगवान कहते हैं जो भी प्राणी इस दुनिया में देखते हैं वो सब भगवान के बच्चे। उनको इस प्रकार आदर देना, अपना अपना आदर दे के रखना जरूरी। ये है अहिंसा। तो अभी नेक्स्ट वर्स में जाएंगे। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सो सहिष्णुता, टॉलरेंस। टॉलरेंस का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम सामने दिखता है अध्ययन, वो है पेड़ है। पेड़ जिस प्रकार टॉलरेंट रहते हैं, उसके अंदर में हम आश्रय लेते पूरा जीवन, फिर उसको काट के हमने यूज करने के बावजूद भी वो अपना धर्म को कभी नहीं छोड़ते हैं ना। वो कभी तिरस्कार करते हैं आपने इस प्रकार मेरे को काटा क्यों, खंडन तो नहीं करते। सो कोई भी प्रकार की इंसल्ट और डिसऑनर हमारे जीवन में आते हैं
कभी आता है ना इंसल्ट डिसऑनर, लोग बहुत कुछ इंसल्ट करते हैं, इसको भी हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक प्रगति आपका लक्ष्य है, नेचुरली जो भी इस दुनिया की जो सिचुएशन जो आता है उसको आप छोड़ के चले। उदाहरण के लिए, इतना लॉकडाउन के बाद मान लीजिए आपको मौका मिला, आपके सबसे नियर एंड डियर वन जो अभी आपके पास नहीं है, उनसे मिलने का एक मौका मिलता है। उनसे मिलने जब जाते हैं तो उस समय अलग अलग प्रकार के, अब गाड़ी में जा रहे हैं उनको मिलने के लिए बहुत साल के बाद, में भी 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद आप जा रहे हैं मिलने के लिए, रास्ता में अलग अलग प्रकार के लोग मुंह होते रहते हैं, या फिर आपके फेवरेट स्वीट शॉप भी मिलेगा, या फिर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट है वो भी रास्ते में आ सकता है। ये सब आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ना डाइवर्ट करते हैं। या फिर ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम से बाधा होता है, फिर भी आपकी जो मेन फोकस रहते हैं उनको मिलने का। उसी प्रकार भक्ति में जो आगे बढ़ने वाला, भगवान को पाने का जो इच्छा जिसका तीव्र है, ये दुनिया की हर प्रकार के इंसल्ट या फिर डिसऑनर को वो सहन लेते हैं। उसके सबसे बड़ा उदाहरण हम शास्त्र के अनुसार देखेंगे, वो है श्रीला हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म एक म्लेच्छ कुल में हुआ है, फिर भी अपना नाम हरिदास रखे, क्योंकि भगवान के सेवक रहना चाहते थे। और बचपन से ही उनका इच्छा था कि भक्त का संग करने के लिए, बल्कि उनकी जो परिवार लोग हैं या फिर उनकी जो कुल के लोग हैं, म्लेच्छ कुल की जो मुसलमान है, वो लोग उनको खंडन करते थे, ये हरिदास आपने क्या कर रहे हैं, आप जिस भगवान का नाम ले रहे हैं वो तो काफिर का भगवान है, आप कैसे ले सकते हैं, आप धर्म का विरुद्ध जा रहे हैं, मुसलमान के धर्म के विरुद्ध। हरिदास तो कहते हैं नहीं, ये भगवान जिसको आप अल्लाह कहते हैं वही भगवान यहाँ पे कृष्ण के रूप में, उस भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, और मैं इस जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु आश्रय में रह के पूरा आजीवन सेवा करने की एक प्रण लेके बैठे। तो उन्होंने वैष्णवों की संग लेते थे, स्पेशली अद्वैत आचार्य के संग लेते थे। और अद्वैत आचार्य जन्म के हिसाब से उन्होंने बड़ा एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, सब ब्राह्मण का गुरु के रूप में था अद्वैत आचार्य। और वैष्णव होने के नाते हरिदास ठाकुर, बल्कि वो एक मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, उनको सही समझ में आया, ये सबसे बड़ा वैष्णव। हरिदास ठाकुर का स्वीकार तो सिर्फ वैष्णव की कम्युनिटी में हुआ है, तो मुसलमान लोग थे हरिदास ठाकुर पर द्वेष रखते थे, क्योंकि ये तो अपना कुल का खंडन कर रहे हैं, भगवान ये क्या हिंदू का पालन करके, हिंदू का धर्म पालन। और हिंदुओं की कुल में जो है वो लोग हरिदास ठाकुर को तिरस्कार करते थे, क्योंकि ये म्लेच्छ कुल में जन्म लिया है करके। तो आप देखेंगे हरिदास ठाकुर की सिचुएशन ऐसा है कि पूरा दुनिया उनको इंसल्ट कर रहे हैं। बल्कि इस प्रकार हुआ, एक बार राजा के प्रति एक कंप्लेन चले जाते हैं, राजा नवाब हुसैन, तो नवाब कहते हैं हरिदास ठाकुर को, तुम इस हरे भगवान के हरि का नाम मुंह से बंद करो, नहीं तो आपको खंडन करेंगे। वो हरिदास कहते हैं आप मेरा शरीर को खंड खंड करो, प्रॉब्लम नहीं है, हर एक खंड जो मांस का पिंड जो है मेरा, हर एक पिंड भगवान के नाम लेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। फिर उस समय राजन आदेश करते हैं कि हरिदास ठाकुर को 21 मार्केट प्लेसेस में, अलग अलग जो मार्केट की जो प्लेसेस है नवद्वीप में, वहां पे उनको मारने के लिए कोरडा से विप होता है ना, विप के माध्यम से उनको मारने के लिए। तो हरिदास ठाकुर को
ये लोग लेके जाते हैं, हर एक मार्केट प्लेस में उनको मारते। जनरली कोई भी आदमी 2 या फिर 3 मार्केट प्लेस के बाद जिंदा नहीं रहते, इतना जोर से होता है उसकी जो पीड़ना एक विप के साथ मारने का, उसमें प्राण को नहीं बचा पाते। फिर हरिदास ठाकुर को मारने वाला 21 मार्केट प्लेसेस में मारने के लिए जाते, फिर भी हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता है। फिर उस समय वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपका शक्ति क्या है, आप इतना पतले दुबले हैं, आप एक मार्केट प्लेस में मरने वाला है, आप 21 जगह पे आप मारे फिर भी कुछ नहीं हुआ है आपको। हम जब राजा को पता चलेगा हमारा पूरा परिवार को मार देंगे। जो ये मार रहे थे वो लोग खुद बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब जब तक आप नहीं मरेंगे हमको मरना पड़ेगा परिवार को। फिर हरिदास ठाकुर को जैसे सुनते हैं मेरा जीने से इस दोनों की परिवार को कष्ट पहुंचेगा, वो नहीं चाहते थे। तुरंत हरिदास ठाकुर ने वहां पे एक समाधि की स्थिति में आते हैं और अपना प्राण को छोड़ देते हैं। कभी होता है कि नहीं, ये वैष्णव के हिसाब से हो सकता है, दूसरों के भलाई के लिए खुद का प्राण भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। ये है श्रील हरिदास ठाकुर। और कौन है दूसरा, वैष्णव नहीं है वो, उनको मारने जो आए वो है। फिर उनको उठा के फिर पूछते हैं इनको क्या करना है शरीर को। फिर मुसलमान लोग कहते हैं उनको दफना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुसलमान के हिसाब से उनको दफना चाहिए, बट ये तो मुसलमान की जो धर्म को खंडन किया है, इनको तो आप जला दीजिए। फिर हिंदू लोग आया, हिंदू की जो कुल के लोग आके, कुल की जो कुलपति लोग आके वो बोलने लगा राजा को, नहीं उनको जला भी नहीं सकते हैं, इतना पापी है, इनको हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कैसे जला सकते हैं, उनको नहीं जलने देंगे। फिर वो लोग कहते हैं कि इससे सबसे इस प्रकार की मृतत, इस प्रकार की जो व्यक्ति को सिर्फ जल समाधि कर लीजिए, वही सबसे बेस्ट है। ये प्राणी नहीं, ये मनुष्य नहीं है, एक जानवर से भी सबसे खतरनाक है, इनको जल समाधि कर दीजिए। सो उनको उठा के हरिदास ठाकुर को जल में फेंक देते, गंगा में फेंक देते। फिर भगवान की लीला तो अलग होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा की वजह से फिर हरिदास ठाकुर प्राण में आ जाते हैं, समाधि से बाहर आ जाते हैं। फिर वो तैर तैर के गंगा को पार करके फिर वापस राजा के पास पहुंच जाते हैं कीर्तन करते हुए। फिर उस समय नवाब पता चलता है कि ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है हरिदास ठाकुर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने जब आपको 21 मार्केट प्लेस में मार रहे थे लोग, मैं तो अपना सुदर्शन चक्र को लेके आ गया था उधर, इन दोनों व्यक्ति को जो प्रोसिक्यूटर्स है ना, उन दोनों को मारने के लिए, एग्जीक्यूटर्स है, उनको मारने के लिए मैं आ गया था, बट मेरा सुदर्शन चक्र मेरे हाथ से निकल नहीं रहे थे। हरिदास ठाकुर, ये आपकी सहिष्णुता के कारण है। आप इतना सहिष्णुता के भावना में प्रार्थना किया है भगवान से, आपने प्रार्थना किया कि ये जो व्यक्ति मेरे को जो मार रहे हैं शायद उनको एक्चुअल ज्ञान नहीं है, अपना राजा कहने से वो लोग मार रहे हैं। वो भगवान गोविंद, वो माधवा, इनको क्षमा कर दीजिए, ये लोग जो कर रहे हैं उनको शायद उसके बारे में ज्ञान नहीं है। ओ लॉर्ड, ओ फादर, प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये प्रोफेट जीसस जब उनको शिलुआ के ऊपर उनको मार के रखा रहे थे, उस समय जीसस स्वयं इस प्रकार की प्रार्थना किया है, ओ फादर प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। सो यही भावना को यहाँ पे हरिदास ठाकुर भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सहिष्णुता। श्रील प्रभुपाद ये टॉलरेंस के लेवल पे
जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल भी कहते हैं बहुत बार। तो एक्चुअली ये श्लोकास है ना, ज्ञान की जो श्लोकास है बहुत सुंदर है, और शायद हम अभी एक ही पेज, एक ही पन्ना अपने पढ़े हैं हम अभी तक। उसके बाद बहुत छोटा छोटा रूप में प्रभुपाद ने और एक दो पन्ने में इसका विवरण करते हैं। सो मैं अजय प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद हम नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू करें और इस श्लोकों को कंप्लीट करें, ठीक है? हाँ प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई चैट में आया तो। हरे कृष्ण ही है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा प्रभु जी, हम लोग का बहुत परम सौभाग्य है कि आपका संग मिल रहा, साथ मिल रहा। तो प्रभु जी, हम लोग एक क्लास चल रही है, जैसा आपने शुरू में बोला कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास तो सारे भक्तों का है, जो सब मिलकर के इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग लाभान्वित ले रहे हैं, अपने सब मिलकर के क्लास कर पा रहे हैं। तो हम लोग सभी को प्रभु जी के लिए हरे नाम का महामंत्र भक्त के उनके लिए बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे। तो ये जो 18-20 क्वालिटीज है नॉलेज का, इसमें हम लोग अपानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, ये 4 का विश्लेषण किया है। उसके बाद जो आएगा आर्जवम, ये सब उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सब भक्तों से कि जब हम एक क्लास कर रहे हैं, इसको इसी प्रकार एंथुसियाज्म से आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि भगवत गीता की ज्ञान है सिर्फ हमारा बुद्धि को परिवर्तन तेज नहीं करते हैं, बल्कि अपना मन को भी शुद्ध करते हैं। ये भगवत गीता की चर्चा वैष्णव के संग में जब हम करते हैं, उसमें अपना आत्म भी संतृप्ति पाते हैं। जब इस प्रकार मन, बुद्धि और आत्मा का जब एक प्रकार की शुद्धता होते, तो नेचुरली अपना कार्यों में भी वो दिखेगा। शरीर के माध्यम से कार्य जो करते हैं, उसमें भी हम परिवर्तन देख सकते हैं। शायद हमको लगेगा कि कुछ चीज आप कह रहे प्रभु जी बहुत बड़ा चीज लग रहा है मेरे लिए। अब खाने के जो चीज आएगा, अभी आएगा एक एक करके, प्रॉपर क्लीननेस के बारे में कहते हैं, खाने के बारे में बताते हैं, किस प्रकार रहना है उसके बारे में कहते हैं। ये सब लगेगा कि प्रभु जी ये सब पालन कैसे करेंगे। आपको एक ही लक्ष्य रखना है, भगवान की प्रेम। जब ये लक्ष्य रहेगा ना, नेचुरली सब कुछ सेट हो जाता है। हाँ, जैसे मूवी में होता है ना, एक हीरो एक अचीवमेंट पाने के लिए जब जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है धीरे धीरे। तो आपका भी लाइफ रियलिटी में आप एक हीरो है, एक हीरोइन है। इसको अनुभूति करना है तो भक्ति को पकड़ के रखना। भक्ति को छोड़ देंगे तो हम एक जोकर बन जाएंगे, भक्ति को तिरस्कार करेंगे तो हम विलन बन जाएंगे, तो भक्ति को पकड़ के रखेंगे तो हम हीरो हीरोइन बनेंगे। तो हमारे ऊपर है हम क्या चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एक बात कृष्ण। हम थोड़ा शेयर करना चाह रहे थे, जैसे आपने अभी बोला ना गीता के मतलब इतना ज्यादा इसमें होता है, बहुत चेंजेस आता है, हृदय भी चेंज होता है। तो प्रभु जी हम करीबन 13-14 साल से ज्यादा हो गया भक्ति में थे और चैंटिंग भी कर रहे थे। लेकिन पिछले जो लॉकडाउन हुआ ना प्रभु जी, तो उसमें अध्यक्ष माधव प्रभु जी ने जो गीता का वो हम लोग ने क्लासेस मतलब डेली होता था, 2 महीना के करीब, 1.5 महीना के करीब चली थी। तो उससे हम अपना ही अनुभव मेरे ये हुआ कि मेरा भी बहुत ज्यादा परिवर्तन जो इतने साल में जो नहीं हुआ ना, वो खाली मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर हुआ हमारा। इतना शुद्धता, इतना हम खुद अनुभव कर रहे, वो चीज, वो समय ऐसा लग रहा है लाइफ गीता कुछ देखी है मैंने। मतलब इतना अनुभव हमारा इसमें गीता में। तो मैं, आप जो बोले ना, तो मेरे वापस टच हुए, वो बात वापस ध्यान आई है कि मेरे साथ हुआ है। लेकिन ये चीज तो मैं सच में, ये आप बहुत सही बात बोले प्रभु जी। इससे क्या, इस क्लास में ना और आदमी को उत्साह बढ़ेगा, इसीलिए मैंने शेयर किया इस बात को।
कि उत्साह जरूर रखिए। और गीता सच में ये बात परिवर्तन तो बिल्कुल किया है हृदय को। प्रभु जी अभी हम है ना, घर गृहस्थी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। अभी हम भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो मेरे थोड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़े घर में मेरा मन ऐसे छटपटा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे घर में परिस्थिति नहीं है इतनी ज्यादा करने की, लेकिन मेरा खाली मन उसी में ही दौड़ते रहता है। और ज्यादा गृहस्थी में हम डाल रहे हैं, पता नहीं परीक्षा हो रही है प्रभु जी की, पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या है और गृहस्थी में डलते जा रहे हैं, लेकिन मेरा उस तरफ टान आते जा रहा है। ऐसा हो रहा है प्रभु जी हमारे साथ। क्या बोले प्रभु जी? आपसे आपसे तो मेरे को बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलते हैं। आप जिस प्रकार सेवा कर रहे हैं और जिस सेवा प्रकार नहीं आप कर पा रहे प्रभु जी, हम तो ऐसे लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे प्रभु जी। मतलब हमारा खाली उस तरफ टान हो रहा है, लेकिन इधर में टान घर गृहस्थी का हो रहा है। क्या करे प्रभु जी, हम एकदम दुविधा में आ गए। एक्चुअली ये जो कृष्ण के अनुसार भी इस प्रकार की स्थिति हम जो गुजर रहे हैं, हमको भी जब एक क्लास ले रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं भगवद गीता का, भागवतम का, उस समय बहुत एक अनुभूति के माध्यम से जो गुजरते जाते हो बहुत इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सुनने को मिलता है, मैनेजमेंट करो, ये करो, सेटअप करो, उसमें नेचुरली बहुत कुछ घटनाएं हैं जो मन को बहुत बाधा देते हैं, कभी शरीर को बाधा देते हैं। ये भौतिक दुनिया में रहने के एक गिफ्ट है एंजाइटी। ये भौतिक दुनिया में रहने के एक सबसे इम्पोर्टेंट फ्री बिल्कुल गिफ्ट है जो प्रभु मिलता जी, है हम anxiety। महसूस कर रहे हैं इस चीज को। मतलब क्या बोले, दोनों तरफ में ऐसे लग रहा फंस गए बीच में, ऐसे लग रहा। कृष्ण भी इस प्रकार रहता है और इसमें भी बताते भगवद गीता में इस 18 आइटम्स में अर्जुन के बारे में कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर। वो हम नेक्स्ट टाइम भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी, हरि आपने बोल बहुत प्रभु जी, अच्छा हरि। सबको प्रेरणा के लिए बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो तो अभी हम विराम करेंगे। हाँ प्रभु 6:30 हाँ हो गया है, तो अच्छा क्लास अ, यही विराम देता हूँ। बलराम गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी हरि आपको बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो हम क्लास को आज यही विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में शनिवार को 5 बजे